the Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. We talk about news from the nation, India, from Maharashtra and Mumbai. They say to the Romans, justice for the goddess, whose throne tempests could not shake, whose pulse passions could not stir, whose eyes were blind to any kind of favor or ill will, and whose sword that fell on all offenders with equal certainty and impartial strength. आज डिस्कस करते हैं, बहुत बड़े इश्यूज हैं. एक है कि अमित शाह से पार्लियामेंट में कहा कि why is the opposition running away debate from Manipur? मणिपुर डिबेट से ऑपोजिशन किस प्रकार से भाग रहे हैं. एंड कांग्रेस का कहना है कि वी वांट अ स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कम से कम कोई भी स्टेटमेंट को एब्सोल्युटली नहीं चलेगा. दैट्स व्हाट दे से. 9 साल बेमिसाल, बट मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का कहना है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के एरा में 1991 बजट से शुरू हुआ है. नथिंग ग्रेट. 9 साल बेमिसाल नहीं है, पर ये 9 साल बहुत. और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में अजित पवार जिस प्रकार एमएलए फंड का वितरण हुआ, ऑपोजिशन को तकलीफ है कि दिस इज नॉट प्रॉपर. ये टोटली बायस हुआ है और ऑपोजिशन को निग्लेक्ट किया गया है. इन आवर गेस्ट, we have got a distinguished guest today, Abhishek Mishra ji from the BJP. Mishra ji, welcome to the show. Thank you. Yes, Nizamuddin Rain Saab from the Congress. Welcome, sir. Rain Saab, welcome. And Yogesh Chilla Saab from Manse. Chilla Saab, namaskar. नमस्कार सर. We'll begin. Abhishek Mishra ji, आज ये है कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट से कांग्रेस इज रनिंग अवे, बट द कांग्रेस सेज मणिपुर डिस्कशन में हमें प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट चाहिए. प्राइम मिनिस्टर हैज टू स्पीक. व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट फेसिंग द पार्लियामेंट? अभिषेक मिश्रा जी, पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? प्लीज एक्सप्लेन. The point is very, straightforward. The Honorable Prime Minister has already given a statement outside the Parliament when he was speaking to the press. So his statement was a very comprehensive statement. He has included all the various points. He has expressed deep sorrow regarding what has happened. He also said that the entire nation is shamed by the act, and the most important thing, he clearly mentioned that all the people who were involved in the dastardly crime will be severely punished. So Prime Minister has given a comprehensive statement including all the points regarding how unfortunate the act is, how we are all ashamed by the act, and the justice which will be given to the person there in the video, the lady. So the Prime Minister has already given the statement. Now the Congress party, by not joining in a discussion inside the Parliament and insisting that the Prime Minister should once again give the same statement inside, they are basically holding the Parliament hostage, and they do not wish for a discussion. Rajnath Singh ji also said this very clearly. They do not wish for a discussion. Today, the Honorable Home Minister Amit Shah ji clearly said that the Bharatiya Janata Party, the NDA government, wants a discussion, but the Congress and its all the people along with it, they went outside the Parliament asking Prime Minister bolo, Prime Minister bolo. Prime Minister साहब already एक बार बोल चुके हैं. सर पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोल रहे? कांग्रेस तो यही मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट में बोलिए. क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, इसमें है कि देखिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है, अमित शाह जी ने कहा डिस्कशन चालू कीजिए. आपको अगर सच में दर्द है, इफ दे आर रियली विद द पीपल ऑफ मणिपुर, वो आए, वो चर्चा में शामिल हो, अपनी बात रखे, सरकार अपनी बात रखेगी. जब प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी स्पष्ट वक्तव्य दे चुके हैं, दोबारा उसी बात पे घुमाते रहना कि प्रधानमंत्री दोबारा पार्लियामेंट के अंदर बोले, वो ऑलरेडी पार्लियामेंट के सामने बोल चुके हैं, सारा विषय रख चुके हैं. तो ये कांग्रेस का केवल विषय को भटकाना और उनकी गंभीरता से न लेना का ये एक तरह से स्पष्ट ये रूप है कि वो पार्लियामेंट के बाहर धरना दे रहे हैं, पर अमित शाह जी जब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर आके बैठ के चर्चा कीजिए, तो चर्चा में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं. और इस प्रकार से एक मूर्खतापूर्ण मांग कि प्रधानमंत्री आए और बोले. अरे सरकार है, सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मंत्री, गृह मंत्री स्वयं वहां कह रहे हैं कि हम चर्चा में शामिल होना चाहते हैं, आइए अपनी बात रखिए. तो जब प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो दोबारा उनको बुलाने का डिमांड करने के नाम पर मणिपुर पे चर्चा ना करके मणिपुर की जनता के साथ अत्याचार, मणिपुर की जनता की आवाज दबाने का दुष्प्रयास ये कांग्रेस और उसके गठबंधन साथी करते हैं. रहीन साहब, अमित शाह तो स्टेटमेंट दे ही रहे हैं.
बट व्हाई इज कांग्रेस इंसिस्टिंग? कांग्रेस क्यों इंसिस्ट कर रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज टू स्पीक? उनका कहना है कि बीजेपी का कहना है प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बोल दिया, भले पार्लियामेंट के बाहर बोल दिए, बट रायन साहब बोल दिए पार्लियामेंट में, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। रायन साहब, व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात का है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। पूरा देश जानता है कि वो झूठ के अलावा कोई बात करते नहीं है। जब उनको ये बात का एहसास है कि पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुक गया, ये बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो उन्हें संसद में बात करने में क्या तकलीफ है? क्योंकि संसद में जो बातें होंगी वो रिकॉर्ड होंगी। और पिछले 9 वर्षों में नाबियार साहब, आपने देखा होगा कि देश के किसी भी विषय पर, जिसका विषय है उससे हटके उनका दूसरा मंत्री बात करने आता है, जिसका संबंध नहीं होता कभी। तो आज जो घटना है पूरी दुनिया में, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं टहल कर कि इससे मेरा शर्म झुक गया, सर मेरा, मैं बड़ा व्यथित हूं, बड़ा दुखी हूं। ये एक मगरमच्छ का आंसू है। जब 70 से 76 दिन हो गए, 76 दिनों तक प्रधानमंत्री को दुख नहीं हुआ, और 76 दिनों के बाद जब पूरी दुनिया में, कांग्रेस तो वीडियो लेके नहीं आई, वो वीडियो अपने आप आया और उसमें उस सत्यता थी, तो उनका शर्म से झुका और उन्होंने बजाय कोई कार्रवाई करने के सिर्फ ये कहा कि मैं बड़ा दुखी हूं। तो कार्रवाई करना चाहिए था, उनके मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। और संसद में भारत के ही नागरिक सांसद चुनकर गए हैं, उनमें से भी बहुमत में उनके सांसद हैं। अगर वहां भी प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते तो किस बात के लिए प्रधानमंत्री हैं वो? आप सोचिए कि मणिपुर का मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है। सैकड़ों से ज्यादा लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं। हालत ऐसी है कि गवर्नर खुद कह रही है, जो उनकी महामहिम है, उनका स्टेटमेंट है कि इतनी बुरी परिस्थिति मैंने जीवन में नहीं देखा, मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं पर क्या देश के प्रधानमंत्री को बयान नहीं देना चाहिए? प्रधानमंत्री सत्य से भाग रहे हैं और इन सब लोगों का खेल है कि इस तरह के हत्याएं हों, लोग मारे जाएं और उस पर ये जो है अपनी रोटी सेके और लोगों को भड़काएं और काम करें। इसलिए संसद एक ऐसी जगह है जो राजनीति का पवित्र मंदिर है, वहां आके प्रधानमंत्री को बोलने में क्या कष्ट है? वही बात वो जनता से मंचों पर भाषण कर रहे हैं ना, वही भाषण उनको संसद में करने में क्या तकलीफ है? अगर देश का विपक्ष उनसे कह रहा है कि आप संसद में इस बात का जवाब दीजिए कि मणिपुर में 77 दिन से आप कहां थे, 77 दिन से भारत का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था। गृह मंत्री जाके वहां घूमकर चले आते हैं, उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं किए। इस तरह के हालात देश में पहली बार बने हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस की, मिलिट्री की, उनके हथियार वहां गुंडे लूट रहे हैं और पुलिस पर पथराव हो रहा है। सरकार मदद कर रही है एक ग्रुप को पूरा जानबूझकर। तो ये इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी ये बहाने करना कि विपक्ष जो है चर्चा नहीं चाहता, तो विपक्ष चर्चा चाहता है तो ही तो हाउस में लाया है इशू। तो आप चर्चा से प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, उनको हर जगह जाने का शौक है, फोटो खिंचाने का शौक है, घूमने का शौक है, लेकिन संसद में जवाब देने के टाइम उनको पता नहीं क्या कष्ट है। अरे देश के नागरिक आपसे जवाब मांग रहे हैं, जो संसद में बैठे हैं, पहले वो नागरिक हैं, बाद में सांसद बने, उनमें से भी आपका 2/3 आपके लोग हैं, उनके सामने आपको बयान देना है। आप दूसरे को खड़ा करते हैं, भी दूसरे को तब खड़ा करें जब प्रधानमंत्री अपाहिज हो, जब प्रधानमंत्री नाकारा हो, जब प्रधानमंत्री गूंगा हो, तब आप किसी को खड़ा करिए। देश का, नेशन का इशू है, प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है कि पूरे भारतीयों को, देश में रहने वाले 130 करोड़ नागरिकों को विश्वास में लेकर संसद में वो बताएं कि अब तक उन्होंने क्या किया और वहां के क्या हालात हैं। तो चिरे साहब, आप देखें, दोनों को डिबेट देखें। अभिषेक मिश्रा जी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री ने जो कहना था वो कर दिया है। अंदर अमित शाह हमारे दूसरे मंत्री है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, वो अपना जवाब देना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि क्या आप सुन लिए कि प्राइम मिनिस्टर ही स्टेटमेंट देना चाहिए। राज ठाकरे जी ने निषेध किया है, बोले मणिपुर का घटना जो है निंदनीय है, ठीक नहीं है, डेमोक्रेटिक राज सिस्टम ठाकरे साहब को दर्द है, इंसानियत का दर्द राज ठाकरे को है, इसलिए उन्होंने उस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत घटना है। जिस
भी इंसान को दर्द होगा, जिसको अपने देश से प्यार होगा, वो जरूर इस घटना की चिले साहब का सुनता, मैं आपके पास आता हूँ, राइन साहब आपके पास आता हूँ, मिश्रा जी के पास। टेल मी चिले साहब, राज साहब ने कहा दर्दनाक है। चिले साहब, मणिपुर वाला इंसिडेंट। सर, पहली बात तो ये है कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे पंतप्रधान भी लोगों की जवाबदेही में है। 9 साल से माननीय मोदी साहब ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। आप कितना भी अच्छा काम कीजिए, अगर आपके काम अच्छे हैं तो आप प्रेस के सामने क्यों नहीं आते। अभी मेरे जो बीजेपी के प्रवक्ता दोस्त है वो कह रहे थे कि उन्होंने लोगों के सामने अपनी बात कही है, तो संसद में वही बात दोहराने की जरूरत क्या है। मेरे दोस्त, लोगों के सामने बात करना अलग रहता है और संसद के सामने खड़े रह के लोगों के प्रतिनिधियों के सामने बात करना ये अलग बात है। आपको अगर इस लोकतंत्र देश में अगर आप पंतप्रधान बनते हैं तो आप जवाबदेही, आप संसद में खड़े रह के ही आपने आपकी बात कहनी चाहिए। आपके मन की बात में इस देश में किसी को स्वारस्य नहीं है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। आप जो भी बात संसद के सामने रखेंगे वही बात लोग सुनेंगे और लोग उस पर रिएक्ट भी करेंगे। अभी अगर 77 दिन से एक राज्य हमारा जल रहा है, वहां के दो समाज एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, तो माननीय पंतप्रधान जी का ये कर्तव्य है कि वो दखल अंदाजी करे और उस राज्य में शांति कैसे प्रस्थापित हो सके उसके लिए वो प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन हर वक्त की तरह पिछले 9 साल में हमने देखा है, जब भी देश में ऐसे कोई आंदोलन होते हैं, ऐसे कोई दंगे होते, तब पंतप्रधान अपनी चुप्पी साधे खड़े रहते हैं सिर्फ, और अमित शाह जी को आगे किया जाता है। जबकि लोगों का, इस देश के लोगों का अमित शाह पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप समझ लो कृपया इस बात को। इस देश के लोग मोदी जी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अमित जी पे कोई भी भरोसा नहीं करता। इस देश के पंतप्रधान अमित शाह नहीं है, इस देश के पंतप्रधान माननीय मोदी साहब है। उनको देख के लोगों ने बीजेपी को वोटिंग किया है। अगर मोदी साहब को देख के वोटिंग किया है तो संसद में खड़े रह के जवाब मोदी साहब को ही देना पड़ेगा। एक राज्य अगर जल रहा है तो ये जिम्मेदारी पंतप्रधान जी की है। उन्होंने सभी सवालों के जवाब संसद में खड़े रह के ही देने चाहिए। ये मन की बात अभी मंकी की बात होने लगी है, ये सब हास्यास्पद होने लगा है। तो हमारी यही विनती है कि माननीय पंतप्रधान इस इशू में नजरअंदाजी न करे, खुद उतरे और एक राज्य को शांति वहां पे बनाए रखे। अभिषेक मिश्रा जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कांग्रेस इज नॉट एक्सेप्ट, उनको कहा है कि कांग्रेस वांट्स द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट, कांग्रेस वांट्स द प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक। अभिषेक जी, कांग्रेस का भी कहना है और आपने देखा मनसे के हमारे जो पार्टिसिपेंट है योगेश चिल्ले, उनका भी कहना है कि प्राइम मिनिस्टर हैज टू स्पीक। जब भी बात करते हैं तो बीजेपी का कहना है कि बाकी जो वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ है, छत्तीसगढ़ में वायलेंस हुआ है, झारखंड में वायलेंस हुआ है, राजस्थान बहुत अनसेफ है। राजस्थान अनुराग ठाकुर जी के हिसाब से द मोस्ट अनसेफ प्लेस फॉर वुमन। तो ये कब तक ठीक है? अभिषेक मिश्रा जी, आयु नहीं अभिषेक जी? अच्छा, we'll get back to अभिषेक मिश्रा जी when he is connected। ये बहुत एक ऐसे व्यवस्था है कि कांग्रेस के डिमांड, बीजेपी का कहना है निजामुद्दीन राइन साहब की ये जो 4 स्टेट है, राजस्थान द मोस्ट अनसेफ, राजस्थान सबसे अनसेफ है। वेस्ट बंगाल, पूरे देश ने देखा किस प्रकार महिला का डिसरोबरमेंट हुआ है। छत्तीसगढ़ बहुत खराब है, झारखंड उससे भी खराब है। तो वाई सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे वेस्ट बंगाल को डिनाउंस नहीं करते, छत्तीसगढ़ पे कुछ बोलते नहीं, झारखंड पे कुछ बोलते नहीं और राजस्थान पे तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलते। ये मौन व्रत क्यों है जब कांग्रेस रूल स्टेट या कांग्रेस अलाइज रूल स्टेट? ऐसी एक घटना ये नहीं बता सकते जिसपे सरकार ने तुरंत एक्शन नहीं लिया हो। राजस्थान में जो 2-3 घटनाएं हुई, तत्काल प्रभाव से उनकी गिरफ्तारी हुई, उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री ने पूरा जो उनके राज्य का विषय है उस पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में मैं अभी जाके आया हूं, मैं वहां इंचार्ज हूं। छत्तीसगढ़ में कोई एक ऐसी घटना ये नहीं बता सकते जो ये बातें करते हैं, सिवाय झूठ के पुलिंदे के इनके पास कोई विषय नहीं है।
बंगाल के विषय में भी सरकार जो है केंद्र से फोर्सेस भेजती है, उन्होंने वहां की लोकल पुलिस पर विश्वास नहीं किया। पंचायत चुनाव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल गई थी, उनको उन्होंने नहीं रखा कि वो ममता ने रखा है, वो भी जवाबदारी केंद्र पे बनती है। तो ये भागने वाले विषय हैं, और कौन क्या गलती कर रहा है वो दिखाने से पहले 9 बरस में इन्होंने क्या किया है इनको दिखाना चाहिए। मणिपुर 76 दिन से जल रहा है, पूरी दुनिया जो है लानत भेज रही है, लानत। आज उस लानत का जवाब संसद में देने के बजाय आप लोगों से जो है अपने 2 मंत्रियों को खड़ा करके मीडिया में दूसरे पुराने किस्से निकाल रहे कि भाई फला ने ऐसा किया था। अरे भाई फला ने जो किया था किया होगा, लेकिन आप भारत के प्रधानमंत्री अभी हैं, सुरक्षा की जवाबदारी अभी है, राज्य जल रहा है, 2 कम्युनिटीज को आप लड़ा रहे हैं और आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसको, और ये बहाने ले रहे हैं कि फला राज्य में भी तो हो रहा है। तो आपकी क्या जवाबदारी है? आपने क्या कार्रवाई की? आपने राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए तत्काल प्रभाव से, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। बजाय आप बर्खास्त करने के आप दूसरों पर उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। जो घटना हो रही है देश जिसकी वजह से शर्मसार है, आज खुद प्रधानमंत्री ये बात कहता है, ये कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया में मेरा सर शर्म से झुक गया। ये बात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो जो प्रधानमंत्री खुद कह रहा है, अगर वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और वो सिर्फ घूम रहा है और टहल कर देख रहा है और गठबंधन की सरकार बिगाड़ने का काम करने का, बाकी कहीं क्या हो रहा है उससे उनको कुछ पड़ी नहीं है, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये जवाबदारी से बचने का रास्ता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है, बंगाल में वैसा हो रहा है, तो देश चलाते क्यों हैं आप? अगर आपसे ये सब नहीं होता तो आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। या तो जिस योगेश चिले जी, ये बीजेपी का जिस प्रकार से कहना कि देखो वेस्ट बंगाल में खुलेआम वायलेंस इलेक्शन के टाइम्स में, जिस तरह के वायलेंस है पूरे देश में किसी ने नहीं देखा वेस्ट बंगाल, तभी इंडिया का जो यूपीए इंडिया बन गया, कोई कुछ बोलता, ना सोनिया गांधी कुछ बोलती है, ना राहुल गांधी कुछ बोलता है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बोलता है, यहाँ पर शरद पवार जी भी कुछ बोलते नहीं है। वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, डिसऑर्डर सब वहीं पर होता है। राजस्थान, अनुराग ठाकुर जी का कहना है वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ, उनका कहना है कि अनसेफ फॉर वुमन। जितने क्राइम्स मणिपुर उससे 10 गुना या 100 गुना क्राइम्स वहां पर हो रहा है राजस्थान में। हमारे बड़े नेता कांग्रेस के कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, कोई निषेध नहीं करते। झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोई, तो ये क्या तुलना सही है चिले साहब? चाहिए कि वायलेंस एवरीवेयर शुड बी डिनाउंस्ड, और महिला पे अत्याचार वहीं पर भी हो रहा है, बीजेपी का कहना है। चिले साहब आपका क्या स्टैंड है? जब देश में कोई घटना ऐसी घटती है तो इस प्रकार से तुलना करना ये बेहद गलत चीज है। मैं आपको याद दिला दूं, जब गोधरा के दंगे हुए थे उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो पंतप्रधान थे अपने देश के, उन्होंने कहा था मोदी जी को लेके कि राजधर्म का पालन कीजिए। आज बीजेपी कुछ भी बोले, उसका मतलब कुछ भी निकाले, लेकिन उसका मतलब एकदम तय था कि मोदी जी ने रिजाइन देना चाहिए था। तब ये हुआ नहीं था, और तब अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान थे। आज मोदी जी खुद पंतप्रधान है। जब उन्होंने तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुनी नहीं थी, तो अब वो किसकी सुनने वाले हैं? तो अब वो किसी भी मणिपुर के मुख्यमंत्री को कभी कहेंगे, कांग्रेस की अगर अपेक्षा रहेगी मोदी जी मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को कहेंगे कि आप रिजाइन कर दो, ये होने वाला नहीं। जिसने खुद रिजाइन नहीं किया था वो दूसरों को भी रिजाइन करने को बिल्कुल कहेगा नहीं। हमें दुख एक ही बात का है कि राजस्थान मणिपुर जैसे जल नहीं रहा है, वेस्ट बंगाल मणिपुर जैसे जल नहीं रहा है। तो आप राजस्थान की तुलना, वेस्ट बंगाल की तुलना मणिपुर से नहीं कर सकते। देश के हर स्टेट में ऐसी घटनाएं घट रही है, लेकिन उसका प्रमाण कितना है? मणिपुर में जो हो रहा है वही घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है क्या? नहीं हो रही है। वैसे राजस्थान जल रही है क्या? नहीं जल रहा है। तो आप राजस्थान की, वेस्ट बंगाल की तुलना मत कीजिए मणिपुर के साथ। मणिपुर के लिए आपको अलग से रणनीति तय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मणिपुर जलता है तो अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट है वो हमसे टूटने वाले हैं। ये धोखा माननीय राज साहब ने भी पीएम के सामने रखा था, लेकिन पीएम हमें मालूम नहीं कौन से चश्मा लगा के इस सभी घटनाओं को देख रहे। अगर वो हिंदुत्व के चश्मे से इन सभी घटना, हम खुद हिंदुत्ववादी है,
लेकिन अगर एक राज्य जलता है तो हम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कभी उस राज्य को नहीं देखेंगे, कल भी नहीं देखे, आज भी नहीं देखेंगे। हम चाहते हैं कि पंतप्रधान जी ने चश्मा जो पहना है अभी, वो तुरंत निकाल के दूसरा चश्मा उन्होंने पहनना चाहिए और उस चश्मे से मणिपुर को देखना चाहिए और वो चश्मा शांति का ही होना चाहिए। रहीम साहब, ये हम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी वहां पर गए थे, वहां दौरा किया था और थोड़ा सा शांति वहां मणिपुर हो गया था, फिर आगे उनको मिलने नहीं दिया, जो भी कारण हो। मगर राहुल गांधी जी जब मणिपुर गए थे, थोड़ा सा स्थिति में चेंज इफेक्ट हुआ था। बट आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? आपका कहना है कि मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी जी सब जगह मोहब्बत की दुकान, नफरत की राजनीति से दूर, इस चीज का उपयोग पूरे देश में अपने जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों को बार बार यानी लोगों से कनेक्ट करके बोल रहे हैं। रायन साहब, ये क्या व्हाट इज द बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है? वो किस लिए प्राइम मिनिस्टर से स्टेटमेंट नहीं आ रहा? आपने ब्लेम तो किया, बट रीजन क्या होगा? प्रधानमंत्री को इस बात से अच्छे से पता है कि 9 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस देश को जो जिस तरह से वो रसातल पर ले गए हैं, पूरा देश ये बात जान रहा है और देख रहा है। तो वो इस तरह की घटनाएं जब देश में कहीं हो तो उस पर का एक्शन होना चाहिए था। भारत के प्रधानमंत्री की जवाबदारी थी कि डबल इंजन की सरकार थी, वहां भी उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी। जब उनकी खुद की सरकार है, वहां कोई अपोजिशन की सरकार है नहीं, कोई चीज छिपा रहा है। और जिस तरह से 77 दिनों तक इन्होंने ये कहा कि हमको वहां की चीजें नहीं पता थी, आप कैसे प्रधानमंत्री हैं कि आपको वहां की घटना पता नहीं हो? पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी नेता के घर में क्या हो रहा है, वो आपको पता है। एक राज्य पूरा जल रहा है, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लोग अपने अपने घरों को छोड़ चुके हैं, सैकड़ों चर्चें तोड़ी गई हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, औरतों को नंगा रोड पर घुमाया जा रहा है, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उसके बावजूद बीजेपी ये कहे कि हमको कुछ मालूम नहीं है। हमने तो आपके सामने उदाहरण पेश किया कि इस हालत में भी राहुल गांधी सबसे पहले वहां पहुंचकर शांति स्थापित करने के लिए ही गए और उन्होंने भी वही मांग किया कि वहां की सरकार को बर्खास्त करो और तुरंत जो है और दलों के जितने मित्र दल हैं सबको बुलाओ, शांति में सबको बिठाओ और देश का एक भाग्य इस तरह से जले, ये देश के लिए शर्म की बात है। और सरकार हमारी कोई कमजोर नहीं है केंद्र में, वो ये नहीं कह सकती, सारे डिसीजन के पावर्स उनके पास हैं, गृह मंत्रालय उनके पास है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का पूरा कार्यालय है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। क्योंकि उनमें आज जो घटनाएं हो रही हैं, बीजेपी को लग रहा है कि 2024 में हम इसी के बल पर फसल काटेंगे और हम दोबारा सत्ता में आएंगे। शायद इनकी ये गलतफहमी है, क्योंकि जिस भारतीय का भी खून गिर रहा है या जो भारतीय मारा जा रहा है वो इसी भारत का नागरिक है। अगर एक नागरिक भी कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, वो मोहब्बत का पैकर लेकर आज शहर शहर घूम रहे हैं और उन्होंने ही सबसे पहले जाकर, उनको भी जाने में कितने अड़ंगे लगाए गए, कितनी जगहों पर उनको पुलिस का बंदोबस्त नहीं दिया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने पूरी घटना को वहां के गवर्नर के सामने रखा, देश की जनता के सामने रखा, मीडिया के सामने रखा। आज प्रधानमंत्री इसी बात से तो भाग रहे हैं। अभी हमारे मित्र जो है वो मनसे के, वो कह रहे थे कि एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर की बात, वो तो आम खाने की विधि में बात करते हैं। वो बात करेंगे कि आम निचोड़ के खाना है कि आम काट के खाना है। और इंटरव्यू कौन लेगा? नाचने वाला पत्रकार इनका इंटरव्यू नहीं लेगा, क्योंकि उनमें दम नहीं है कि वो इस तरह की बातें जनता के सामने रख सकें। जहां बीजेपी के कुछ लोग इकट्ठा होंगे वहां वो बोलेंगे, लेकिन संसद में चूंकि वो रिकॉर्ड दर्ज होगा इसलिए वो भाग रहे हैं। चिले साहब, जिस प्रकार से आप देखे, राइन साहब को भी देख लिए, अभी बीजेपी के जो अभी वो आ जाएंगे, तो ये राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहें नफरत की राजनीति और प्यार और मोहब्बत के दुकान, जो राहुल गांधी जी पूरे भारत जोड़ो यात्रा में सब जगह, अभी ईस्ट टू वेस्ट भी होने वाले, साउथ टू नॉर्थ हो गया, क्या नफरत के बीज बोए जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी, बीजेपी नफरत की राजनीति कर रहे हैं? बीजेपी कह रहा है डेवलपमेंट में कोई हमारा हाथ नहीं जोड़ सकता। उनका कहना है 9 साल बेमिसाल, 9 साल में बीजेपी ने जो काम किया, मोदी साहब ने जो काम किया। बीजेपी का कहना है 60 साल कांग्रेस के और 9 साल, बोलते कि एयरपोर्ट पूरे 60 साल में सिर्फ 74 बनाए थे,
बीजेपी के 9 साल में डबल हो गया, 148। तो अलग अलग IIMs हो या IIT हो, बोले हर चीज डबल टिबल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट हो। तो आप दोनों से देखें, दोनों देखें, तो चिले साहब क्या है ये रीजन, क्या है मणिपुर का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी किस लिए, क्या ये नफरत की राजनीति है, प्यार के मोहब्बत की दुकान की जरूरत है? चिले साहब इसको कैसे देखते हो आप? सर, हमें ना नफरत की दुकान पे जाना है, ना हमें मोहब्बत की दुकान पे जाना है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप इस देश के पंतप्रधान हैं। इस देश में कोई भी राज्य इस तरीके से जलना नहीं चाहिए। जिस दिन ये जलना शुरू हुआ था तभी से आप एक्शन में आने चाहिए थे, आप आए नहीं। 77 दिन से अगर एक स्टेट जल रहा है तो ये आपके लिए भी शर्मनाक बात है कि हम पूरा देश यही कहेगा कि मोदी जी में कैपेसिटी नहीं है ये सब खत्म करने की। इसलिए शायद मोदी जी वहां पे ध्यान नहीं दे रहे। आपके पीछे जो इसके पहले जो बीजेपी के पंतप्रधान थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे आप कुछ सीखेंगे तो ऐसी चीजें देश में होने वाली नहीं है। आप उनसे कुछ भी नहीं सीख रहे, आप सिर्फ अपना आगे चला रहे। तो हम ये चाहते हैं कि कोई आपको नफरत की दुकान चलानी है, नफरत की दुकान चलाओ, किसी को मोहब्बत की दुकान चलाए वो मोहब्बत की दुकान चलाए, लेकिन दो समाजों को आपस में लड़ा के आप मजा मत देखो। वहां पे जाओ और शांति प्रस्थापित करने के लिए जो भी आपको करना पड़े वो सब आप करना जरूरी है। पहले ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में ये भावना है कि हमें इस देश से अलग पूरा ये जो मिलता है ये सब अलग मिलता है, हम अलग है, हम इनके साथ नहीं है, देश हमारे साथ नहीं है। ऐसे में अगर ये जो 4 या 5 राज्य है इसमें से एक भी राज्य जलेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग होने के लिए जोर पकड़ेगा। ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चिले साहब, मगर आपको लगता है कि जैसे कांग्रेस का प्रवक्ता का कहना है कि डेवलपमेंट नथिंग हो गया, 9 साल मोदी जी के आप कुछ भी गिना नहीं सकते। कांग्रेस के जितना नेता है उनका कहना है कि डॉलर का रेट तभी देखो, डॉलर का रेट आज देखो किस प्रकार से। आज जो भी बच्चा पैदा होता है 1 लाख का कर्जा लेके पैदा होता है। कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आपने दोनों का स्टेटमेंट देखे। मोदी साहब जो कहते हैं बीजेपी जो प्रोपेगेंडा मशीन है, उनका कहना है देखो डिजिटल रेवोल्यूशन है, यूपीआई 126 लाख करोड़ ये है, 46% रियल टाइम ट्रांजैक्शन पूरे दुनिया का इस देश में हो रहा है। हमने यूपीआई में अभी श्रीलंका भी जोड़ दिया, फ्रांस जोड़ दिया, यूएई जोड़ दिया, डेवलपमेंट हो रहा है। आज 100 रुपया जो जा रहे हैं वो बरोबर गरीब जो किसान है उसके अकाउंट में बरोबर जा रहा है। जब राजीव गांधी थे उनका कहना था कि 90 रुपया बीच में कहीं फंस जाता है, 10% किसान तक पहुंचता है डाउन ट्रॉडन। तो आप डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मोदी जी का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ कैसे देखते हो आप? पहली बात तो ये है सर कि बीजेपी ने अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि इसके पहले कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है। जब पंडित नेहरू जी पंतप्रधान बने थे इस देश की हालत खस्ता थी, इस देश में दंगे शुरू थे, उसके बावजूद इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उन्होंने देश के इंडस्ट्री पे काम किया, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने पे काम किया। हम भी विरोधी है लेकिन हम ये कभी नहीं कहेंगे कि इस देश के पंतप्रधानों ने, इसके पहले मोदी जी के पहले जो पंतप्रधान थे उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं। हर पंतप्रधान ने, इस देश के हर पंतप्रधान ने देश के लिए कुछ ना कुछ किया है, मेहनत की है, उसके बाद ही ये देश इस राह पे चला है। अगर मोदी जी को उस जो देश पंतप्रधान नेहरू जी थे तब का देश अगर मोदी जी को मिलता तो शायद एक राज्य आज जल रहा है उसके बजाय 10 राज्य जलते हुए आप पाते थे। ये तो पंडित नेहरू जी का कमाल था कि उन्होंने पूरा देश शांत भी किया और इंडस्ट्री के लाइन पे भी उन्होंने देश को लेके आए। इसके पहले जो पंतप्रधान थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पास सिर्फ 15 दिन की पूंजी थी, वहां से उन्होंने देश को कर्जे से भी निकाला और देश अच्छे अर्थव्यवस्था देश की मजबूत की है। तो ऐसा नहीं है मोदी जी के पहले के पंतप्रधान जो थे उन्होंने देश के लिए कुछ किया नहीं। अभी सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि अभी मोदी जी की जो पार्टी है वो सोशल मीडिया पे कांग्रेस से ज्यादा स्ट्रांग है। पंडित नेहरू जी के पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, मोदी जी के पास सोशल मीडिया है, इसलिए उनका विकास ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा दिख रहा है इसका मतलब कांग्रेस ने विकास किया नहीं, ऐसे नहीं। इस देश के हर पंतप्रधान ने विकास किया है और हर एक का जो इस देश पे उपकार है वो ऐसे ही रहेगा, वो हम नाकार नहीं सकते। आज we are joined, I think अभिषेक मिश्रा जी ज्वाइन किए। अभिषेक मिश्रा जी,
अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता निजामुद्दीन जी जिस प्रकार से कहा कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए। योगेश चिल्ले मन से प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट स्पीकिंग? राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का कहना है कि जो प्यार और मोहब्बत के दुकान पूरे दुनिया में उन्होंने पूरे देश में एस्टैब्लिश कर दिया। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ गए थे, अभी ईस्ट से वेस्ट जाने वाले। तो क्या नफरत की राजनीति सब जगह चल रहा है जिस प्रकार से जा रहा है? इज देयर अ नीड फॉर मोहब्बत और प्यार की दुकान? कैसे? Point number one, we have seen in Rajasthan when a minister of the Congress government in Ashok Gehlot's government, when he said कि महिलाओं पे मणिपुर से ज्यादा अत्याचार राजस्थान में हो रहा है, the Congress party immediately sacked him instead of doing self analysis and trying to understand that the Congress minister in Rajasthan is saying कि हमारे यहाँ एकदम बेटियां सुरक्षित है, instead of analyzing and self introspection, Rahul Gandhi, Ashok Gehlot, Sonia Gandhi, they sacked the minister who was speaking about the safety of women. So that is the nafrat ki dukaan of Rahul Gandhi, that if a minister of Congress says in Rajasthan women are unsafe, the Congress party sacks him from the party and removes him from the ministry. So this is the biggest example of nafrat ki dukaan of the Congress party. They hate women, they hate anybody speaking the truth. ये मोहब्बत की दुकान एक बहुत बड़ा झूठ है राहुल गांधी का, जो राजस्थान में हमें सबको ने देख चुके हैं। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री जी का विषय है, आई हैव ऑलरेडी सेड एट द स्टार्ट ऑफ द शो, he already made a statement. A prime minister of the country, when he makes a statement, that is considered an official statement, whether he makes it inside the parliament house or whether on the outside the parliament house. The prime minister has given a statement to the country where he has clearly said that we are all ashamed that the people who are behind this barbaric act will get a severest punishment. And the prime minister also he said that such actions are not at all acceptable. So what else does the opposition? कांग्रेस का कहना है कि निजामुद्दीन राइन साहब का कहना है कि बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ 9 साल में। प्रधानमंत्री इसलिए लोगों को फेस नहीं करना चाहते। आपने सुना नहीं और ऑफ है। नहीं, देखिए निजामुद्दीन जी अब परिपक्वता से नहीं बोल रहे हैं। आप राजीव बजाज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव बजाज साहब आज नहीं है, मैं प्रदीप नबियार बोल रहा हूँ। आज उनकी तबीयत जरा खराब था। देखिए, विद इन द पार्लियामेंट देयर इज अ सेट डिकोर्स. The government of India will give the answers. The opposition can raise the issues. It does not require that the Prime Minister himself keeps standing and giving answers. The Home Minister is there. Now the point is that the opposition actually does not want a debate. You have to understand. What they want is a show, a tamasha. So how will they get a tamasha by standing on the parliament and saying Prime Minister or Prime Minister or? If they want a debate, a discussion, listen one thing. Even if the Honorable Prime Minister is not present in the debate, whatever the opposition will say, it will go in the official records, it will come in the media. So if the opposition really wants to raise the issue Manipur, they would have come inside the parliament. But no, they don't want to discuss the Manipur issue. They are not serious, as Rajnath Singh ji said. Today, Amit Shah ji said, please come discuss. We as the government will give the answer. Amit Shah is the Home Minister of India. A Home Minister of India is absolutely duty bound to speak about a state in India where there is internal violence. He is the person who is responsible. He is giving the statement. But the Congress and the allies of the Congress, who are full of hatred for everybody, they don't want to come inside the parliament. They don't want to give a statement. They don't want the government to give a reply. What they want is to create a fracas outside the parliament so that they get TRP. So now, see, a sensitive issue like Manipur cannot be guided by TRP. It can be only guided by discussion in the parliament, which Amit Shah ji is requesting the opposition to do. Parliament, the Prime Minister has already given a statement. If the opposition really wants to discuss the issue, if it is serious about Manipur, they must come and state inside the house, the government of India, which is the rule. The Home Minister will give a reply. But the opposition cannot say, Prime Minister, you come and stand, then we will talk. मैं राइन साहब के पास चलूं। अपने राजस्थान, राइन साहब उन्होंने कहा कि देखो राजस्थान में जो मंत्री थे गहलोत सरकार में, वो जब कहा तो उनको डिसमिस कर दिया गया, उनका छीना गया मंत्री पद। और हमने भी देखा किस प्रकार उनको घसीट के बाहर, असेंबली के बाहर लेके गए, उनको बाहर कर दिया। और ये नफरत की राजनीति है सर। अभी मैं सुन रहा था, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई सीरियस इशू नहीं है मणिपुर। राजनाथ सिंह कह रहे हैं सीरियस इशू नहीं है। इससे बड़ी मणिपुर इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी कि भारत का प्रधानमंत्री बाहर कह रहा है कि मणिपुर सीरियस। आप सीरियस नहीं है, आप बाहर जा रहे हैं, आप बाहर में तमाशा कर रहे हैं। आप हाउस के अंदर आइए, हाउस के अंदर विषय रखिए। हम लोग हाउस के अंदर प्रधानमंत्री को भाग रहे,
भारत के प्रधानमंत्री की जवाबदारी है कि देश की इतनी बड़ी घटना उस पर बहस करने के बजाय दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है उदाहरण दे रहे हैं। आप निजामुद्दीन जी थोड़ा समझिए, कोई स्टेट में अगर कुछ वॉयलेंस हो रहा है तो वो होम मिनिस्टर के अंडर आता है। निजामुद्दीन जी थोड़ा राजस्थान में देखिए, मंत्री को आपने निकाल दिया क्योंकि उसने कह दी बेटियां सुरक्षित मंत्री को जो निकाल दिया गया वो कार्रवाई पार्टी की है, वो पार्टी का जो विषय है उस पर है। वहाँ ऐसा कोई नहीं कि पूरा राजस्थान चल रहा है, सैकड़ों मार दिए गए, औरतें नंगी घुमाई जा रही, ऐसा नहीं है। ये घटना मणिपुर की जो है उसको ढांकने के लिए उसको छिपा नहीं सकते आप, और आपको ये छिपा नहीं सकते आप। नहीं, जो गलत काम करेगा या जो गलत बातें करेगा, जो अभिषेक जी जरा हम लोग निजामुद्दीन को विल कम बैक टू यू, जरा निजामुद्दीन बोलने दे। निजामुद्दीन बोलिए, रायन साहब बोलिए। जो घटना राजस्थान में हुई, मंत्री बर्खास्त हुआ, वहां दो गुटों की लड़ाई है। आपको बहुत अच्छे से, आप मीडिया में हैं, आपको पता है कि राजस्थान में क्या चल रहा है राजनीतिक तौर पर, किस तरह से बीजेपी वहां की सरकार को गिराने के लिए पूरी कोशिश, पूरा प्रयास किया। उनमें से कुछ लोगों को फोड़ने की कोशिश की, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया कि कल तक 70,000 करोड़ के बेईमान को आप सत्ता में लेने से दूर जा रहे थे, और सरकार बचाने के लिए आपने 70,000 करोड़ के बेईमान को आपने गले मिलाया, उसको अपने घर बुलाया और उसके बाद आपने सत्ता सौंपी। तो आप अपनी बेईमानी छिपाने के लिए दूसरों के गले में मत डालिए। वहां की घटना और मणिपुर की घटना बिल्कुल भिन्न है। प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है, प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते। ये कोई ऐसी घटना नहीं है, कोई राजनीतिक चुनाव हो रहा था और कोई हार गया, कोई जीत गया। इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है और पूरी दुनिया जो है इसको देख रही है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के बजाय आप उनको बचाने की बात कर रहे हैं। आपका गृह मंत्री और होम मिनिस्टर आगे आके इतनी बेशर्मी की बातें करना कि ये दलील नहीं है इस देश के लिए। इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस देश के जितने दूसरे राजनीतिक दल हैं, आप मनसे के अध्यक्ष जी भी इनके सहयोगी बहुत दिन तक थे, लेकिन उन्होंने भी तो कहा ना कि कितनी गलत घटना है, उस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जवाब देने के बजाय इस तरह की बेहुदा चीजें लाकर इधर का उधर करके लोगों का मन भटकाने का काम कर रहे हैं, जो इस देश की जनता पूरे तौर पर जान चुकी है। डेवलपमेंट के नाम पर आप देख लीजिए कि 70 सालों में कांग्रेस ने जितना कर्ज इस देश पे रखा था, 9 सालों में उसके 4 गुना ज्यादा कर्जा हो गया। आज हमारी इकोनॉमी बांग्लादेश से थोड़ी छोटी मोटी रह गई है। कहां बांग्लादेश और कहां भारत। तो इस निकम्मीपन की सरकार का अब कोई जवाब नहीं है। जनता 2024 में स्वयं इसका जवाब देगी और जवाब देना शुरू भी कर दिया है। कर्नाटका में ये पूरी तरह से साफ हो गए, भ्रष्टाचार के सारे केसेस इनके बाहर आ चुके, और यही हाल इनका देश में होगा। अब इनके पास सिवाय हिंदुत्व के कोई मुद्दा नहीं बचेगा। मैं हिंदुत्व का स्वागत करता हूं, लेकिन कौन से हिंदुत्व की, जो देश में एकता की बात करे, जो धर्म की बात करे, जो संतों की बात करे। लेकिन ये हिंदुत्व जो दूसरों को मरवाने की बात करे, ये बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं, दूसरा इस देश में कोई नहीं कर सकता। चिले साहब, आपने दोनों का सुना। चिले साहब, बीजेपी का जो अचीवमेंट्स, मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड है, वहां शुरू होता है यूपीआई पेमेंट से, फिर राम मंदिर हो गए, फिर आर्टिकल 370 हो गए, एयर स्ट्राइक हो गए, बालाकोट स्ट्राइक हो गए, ट्रिपल तलाक हो गए, और ये नेशनली उन्होंने किया। और फिर उनका पीएम आवास हो गए, हर घर नल से जल, शौचालय पर। तो हाउ इंप्रेसिव चिले साहब इज कैसे रिपोर्ट कार्ड, कितने इंप्रेसिव आपको लग रहा है? बिकॉज बीजेपी फुल ऑफ प्रेज, कांग्रेस में लोग कुछ नहीं किया। आप इसको कैसे देखते हो? और कांग्रेस का यह भी कहना है कि ये पूरे रेवोल्यूशन के बात कर रहे हो, ये मनमोहन सिंह और जो नरसिम्हा राव का 1991 के बजट। आज कांग्रेस का स्टैंड वो है कि डेवलपमेंट सिर्फ मोदी जी के काल में नहीं हुआ, शुरुआत हुआ 1991 में। आपने चिले साहब क्या स्टडी, आपका क्या स्टडी मीन्स दोनों विषय पे? सर, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा बिल्कुल था, बोला आपने, बोले इस देश में जितने पंतप्रधान हुए हैं, उस हर एक पंतप्रधान का इस देश के विकास में हाथ है। उन्होंने उसके लिए मेहनत की है। हम ना इसके बारे में कांग्रेस को दोष देंगे, ना अभी ऐसा कहेंगे कि बीजेपी ने कोई भी विकास किया नहीं। मोदी जी के कालखंड में भी विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, हम ये नकारेंगे नहीं।
मगर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप विकास कर रहे हैं तो आप किसी कोई स्टेट अगर जलता है वहां पे आप ध्यान नहीं देंगे, उसे वैसे ही जलते छोड़ेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना सर। आपका विकास है, विकास के लिए तो लोगों ने आपको वोटिंग किया है। आपने जब मोदी जी के नाम पे वोट बटोर रहे हैं, मोदी जी का चेहरा दिखा के लोगों से वोट ले रहे हैं, तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा इस जनता को, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है, बीजेपी को वोट नहीं दिया है। ये आप समझ लीजिए, ये ग्राउंड रियलिटी है। आज भी आप किसी को पूछेंगे आपने वोट किसको दिया है, वो कहेगा मैंने मोदी को वोट दिया है। अगर वोट मोदी को दिया है तो जवाब भी मोदी जी को ही देना पड़ेगा, और वो जवाब वो मन की बात में आके नहीं दे सकते, उनको जवाब संसद में आके ही देना है। और उसमें क्या गलत बात है? लोगों का अमित शाह जी, ठीक है अमित शाह जी गृह मंत्री है, लोगों का उनपे विश्वास है क्या? नहीं है। अगर लोगों का उनपे विश्वास होता तो आप अमित शाह का फोटो लगा के वोट बटोरिए। आप मोदी जी का फोटो लगा रहे हैं तो मोदी जी को जवाब देने दीजिए। क्या क्या दिक्कत है मोदी जी को संसद में आके जवाब देने में? दीजिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर मोदी जी लेते हैं और लोगों के सवालों के पत्रकारों के सवालों के जवाब दे, उतना तो दम है ना हमारे पंतप्रधान में, कि उतना भी दम नहीं है। हमने 9 साल में मोदी जी को किसी पत्रकार के साथ बात करते नहीं देखा। हमें तो खुद शर्म आती है कि हमारे देश का पंतप्रधान पत्रकारों से डरता है। पत्रकार कोई डरने वाली चीज है? उनके पहले जिनको आप मौनी बाबा कहते थे, वो मनमोहन सिंह भी 100 पत्रकारों का सामना करते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी। मोदी जी को क्या दिक्कत है? अपना विकास आप लोगों के सामने रखिए, अपना विकास पत्रकारों के सामने रखिए। क्यों डर रहे हैं आप पत्रकारों से? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मणिपुर के मुद्दे पे होनी चाहिए और संसद में एक डिबेट मोदी जी के सामने होनी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? तो नो आई गॉट इट मिश्रा जी। अभिषेक जी, ये बात ये है कि आज कांग्रेस का क्लेम था, उन्होंने कहना ना, आपने जवाब दे दिया कि मोदी साहब जो बोला था अमित शाह। तो कांग्रेस का आज कैंपेन था कि रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव 1991 बजट, आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद ट्वीट के कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से बाहर निकले कि एक्चुअल रेवोल्यूशन वही से शुरू हो गया था। 9 साल बेमिसाल के आप पीट रहे हो, बट लुक एट द ट्रांसफॉर्मेशन। जो फ्लड गेट्स खोलने वाला काम था वो मनमोहन सिंह ने किया था। हाउ कैन यू डिनाई, नॉट गिव क्रेडिट टू मनमोहन सिंह एंड नरसिम्हा राव? See, the point is very clear that these 9 years they have ensured that India will very soon be a developed country. The present Indian government has ensured also that the basic infrastructure, that all the whatever we require to make India a developed country is practically in place. Also transparency. See, you have to understand one technical fact. In the UPA government, there was no transparency. All the auction, coal auction, it was massive corruption. Now, country, if the main resources, there is a huge corruption जो निजामुद्दीन जी की कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जो एक नफरत दुकान वाली पार्टी है, क्योंकि वो अपने मंत्री, मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ, मंत्री को इसलिए बर्खास्त किया क्योंकि उन्होंने कहा कि इन राजस्थान द वुमन आर अनसेफ। राहुल गांधी को तो उस मंत्री से प्यार करना चाहिए था कि आपने तो महिलाओं का विषय उठाया, पर राहुल गांधी इतने नफरती इंसान है कि जब राजस्थान के कांग्रेस मंत्री ने कहा कि वुमन आर अनसेफ इन राजस्थान गवर्नमेंट, सस्पेंड, हटा दिया मंत्रालय से उसको, एकदम कठोर कार्रवाई की, नफरत की कार्रवाई की राहुल गांधी ने। तो that's what I'm saying. The BJP, what it is trying is कि जो कांग्रेस का जो एक पाप रहा है, जो वर्तमान में भी है और पहले जो उनकी सरकार थी, उस पाप को मिटा के ट्रांसपेरेंसी लाके कि गरीब तक, you are asking me what is the biggest achievement which did not happen under मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, that गरीब तक 1 रुपया में से पूरा 1 रुपया गरीब को मिलता है। पहले राजीव गांधी जी खुद कहते थे 15 पैसा ही मिलता है। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। 85% पैसा गरीब तक पहुंच रहा है, जो गरीब का ये कांग्रेस के बिचौलिए खा जाते थे। कितनी, इसलिए तो निजामुद्दीन जी को इतना दुख है कि ये क्या भाजपा सरकार आ गई जो ईमानदारी की सरकार आ गई। और उसी प्रकार अगर गरीब को 1 रुपया देने में ईमानदारी है, there is transparency. Similarly, there is transparency with regards to when we auction the resources of this country. It may be coal, it may be all telecom, and that is a revolution, because a country where the resources are auctioned and utilized in a transparent manner, that country will definitely see huge growth. Under Congress, we saw absolute loot. 2G or coal or anything else, others, whatever Ghotala. But under BJP, we are seeing transparency, we are seeing honesty, we are seeing vision, we are seeing a goal for the future.
This is what 9 years of Modi ji has given. If the poor man gets 1 rupee in total, no, Bichauliya takes 85%. Also, when the coal is auctioned, it is done transparently. So where lakhs of crores are involved, there also there is transparency. Where 1 rupee is involved, there also there is transparency. This is the greatness of the Modi government in the past 9 years. And what your Congress Nizamuddin ji was saying, I again repeat, they are not serious, the Congress party. If they want to discuss Manipur, as Rajnath ji, Amit Shah ji said, they should come inside the house, make an official statement, let it be on the record, let there be discussion. The government of India will reply, the Home Minister will reply. Whatever the rules of the parliamentary procedure are, it will be done. Today the Honorable Home Minister said, I will give a reply, please discuss, come for discussion. But again I repeat, Congress party is not serious. They want to do tamasha, they want to get TRP. That is why they are harming the people of Manipur by not coming inside parliament. They are going on the outside parliament screaming, Modi ji aao, Modi ji aao. Modi ji has already given a statement. Government of India through Home Minister is ready to give a statement, ready for discussion. So Congress party is not serious. Congress party just wants TRP and tamasha. They don't want to solve the issue of people of Manipur. We are there to solve the issue of Manipur. We want a discussion. We want our solutions to come out. Government of India is totally committed to finding peace in Manipur. निजामुद्दीन जी, थोड़ा हम लोग लोकल महाराष्ट्र के टॉपिक भी ले लेते हैं। चिले साहब, आज जिस प्रकार से एमएलए फंड का बांटा गया, कांग्रेस का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल था, तो पहले रियान साहब, यू वांट टू रिप्लाई टू बीजेपी एलिगेशन, या हम लोग फंड पे जाते हैं, एमएलए फंड पे? रियान साहब इस पर थोड़ा बात कीजिए, उसके बाद चिले साहब जो वो कह रहे हैं कि 9 वर्ष में बहुत सारा पैसा इनका गया है, इनसे पूछिए कि ये पैसा कहां से आया, सब लोन का। और उसके बाद इनको अच्छे से पता है कि जितने करप्शन हुए, आज अडानी और अंबानी के इश्यूज को लेकर पूरा देश देख रहा है। आज चीजों की हालत ये हो गई कि जो 400 रुपए की मिलती थी वो 1000 रुपए की हो गई है। लोगों के घरों में आज बर्तन थाली बेचकर खाने की नौबत आ गई है। अगर ये डेवलपमेंट है तो डूब मरने की बात है। देश में गरीब 20 करोड़ होता था, आज 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना के छोड़ दिया है कि उनको आप राशन बांट के खाना खिलाएंगे। आपके पास डेवलपमेंट के नाम पर अगर रोड बन रहा है तो उसके टैक्सेस इतने हैं कि अगर उसको आदमी को बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो 1500 रुपए उसको रोड के टैक्स भरने हैं। आप ऐसा कोई एहसान नहीं कर रहे हैं देश के ऊपर कि आपने बड़ा काम कर दिया। आज देश की इकोनॉमी आज पहुंच गई आपकी बांग्लादेश के बराबर, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी भारत के सामने। तो आप ये बातें करना कि इसने बेईमानी किया, बेईमानी की सारी दलीलें आप क्या है, कितने लोगों पर आप क्या कार्रवाई हुई? येदियुरप्पा को आपने जेल भेजा, भ्रष्टाचार में वहां की जनता ने उनको उठा के फेंका। बोमई को आपकी जनता ने उठा के भेजा, हिमाचल से आपकी जनता को उठा के फेंका। आप सारे जगहों से इसी तरह फेंके जाएंगे क्योंकि जनता ने देख लिया है कि मोदी की लच्छेदार भाषण की तरह आप भी झूठी बातें जनता के सामने बंद कर दीजिए कि ये देश में जो है लोगों ने लूटा और पैसा दिया। 70 सालों तक अगर कांग्रेस ने नहीं बनाया होता तो आपके मोदी श्री जो बेच रहे हैं ये अपनी ससुराल और मायके से नहीं लाए थे। ये इस देश में बनाया हुआ डेवलपमेंट था जिसको आज मोदी ने बेचा, और बेचा भी किसको? ऐसे 2 लोगों को बेच रहे हैं जो उनके ही लोग हैं, जहां मोदी का खुद का बेनामी का सारा पैसा लगा है। पूरा दुनिया भर के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि जितनी फॉरेन में कंपनियां हैं जो पैसे लगे हैं वो कहां के हैं, किसके पैसे हैं, वो सेल कंपनियां किसकी हैं? आज भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। धोखा और दबाव से राज्य सरकारों को तोड़ना, और पूरा देश देख रहा था कि महाराष्ट्र में 50-50 खो के पैसा बीजेपी ने देकर एक चलती हुई सरकार को उन्होंने तोड़ा। क्या वो हिंदुत्व की सरकार नहीं थी? क्या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के आदमी नहीं थे? आपने ऐसी चलती सरकारों को इसलिए तोड़ा क्योंकि आपको डकैती करने और लूटने का काम मिल जाए जिससे आप उस राज्यों से पैसा लूट सके। आप जहां महाराष्ट्र की बात करते हैं, आप देश के किसी राज्य में जाइए जहां आपकी सरकार है, आज वो बर्बादी के कगार पे खड़ी है। उत्तर प्रदेश में कर्ज इस तरह हो गया है कि अगर एक दिन में पैसा चुकाना होगा तो पूरी सारी संपत्ति बेचने के बाद भी आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप देश का कर्ज चुका सकें। ये लच्छेदार बातें मोदी जी की तरह आप भी कर लीजिए, लेकिन देश की जनता इन सारी चीजों को जान गई है। इसलिए ये बताना कि आपने क्या डेवलपमेंट किया है दिख रहा है। आज जो आदमी 4 जोड़े कपड़े पहनता था अब 2 जोड़े पहनता है। बाजार में 1000 रुपए जो खर्च करता था वो अब 500 रुपए में करता है। आपकी खुद की मंत्री कल जो है उत्तर प्रदेश में बोलती है कि टमाटर महंगा हुआ तो खाना बंद कर दीजिए, दवा महंगी हो जाए तो आदमी मर जाए, दवा नहीं खाएगा।
आप लोगों को लूटने का धंधा बंद करिए, महंगाई को कम करिए। जनता से आपने वादा किया था कि 100 दिन में मैं महंगाई कम करूंगा, नहीं करूंगा तो रोड पर मुझे लात मार देना। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। कितनी जगहों पर आप लात खाएंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि कोई ऐसा महकमा, कोई ऐसी चीज इस देश का बता दीजिए जिसको आपने सस्ता किया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो खाने के सामान हो, चाहे वो पहनने के कपड़े हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो। एक चीज बता दीजिए जिसको 9 वर्षों में आपने सस्ता किया हो और आम आदमी उसे खरीद सके। चिले साहब, विल जस्ट बहुत निजामुद्दीन चिले साहब, विल कम बैक टू दिस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। आज फंड अलॉटमेंट हो गए, डेवलपमेंट फंड अलॉटमेंट, और सब जगह यही था विपक्ष में कि कांग्रेस का कहना था कि अन्याय है, टोटल अन्याय, हमको कुछ फंड मिला ही नहीं है। वेरियस अदर पार्टीज, उद्धव सेना, उनका कहना है कि नो फंड अलॉटमेंट, नो फंड हमको मिला नहीं है। मगर हमने देखा कि जिस प्रकार से कहना, भारत गोगावले साहब को 150 करोड़, किसी को 50 करोड़, जो रूलिंग पार्टी के। तो ये जो वापस जो महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रहा है, क्या इलेक्शन की तैयारी है? आप किस प्रकार से देखते हो? क्या डेवलपमेंट फंड में इस प्रकार से होना चाहिए? सर, पहली बात तो महाराष्ट्र की परंपरा रही है, जो भी यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर है वो कभी अपनी पार्टी, विरोधी पार्टी ये देखता नहीं। जहाँ जहाँ पे भी महाराष्ट्र के जिस इलाके में पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, उस इलाके में वहां पे फंड दिया जाता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, थोड़ी बहुत, क्योंकि इंसान है तो थोड़ी बहुत गलतियां करता है। लेकिन जिस तरीके से अजित पवार साहब पिछली सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आज की सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर है, और ये दोनों टर्म में उन्होंने जिस प्रकार से फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बेहद ही गलत है। जब वो पिछले सरकार में थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब अब के जो शिंदे गुट के जितने भी विधायक थे, ये सभी चिल्ला रहे थे कि शिवसेना को फंड नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम सब एक ही साथ है, फिर भी शिवसेना को फंड नहीं दिया जा रहा है। वो सभी अभी एक साथ है, यही आरोप इनके लगे थे। अगर अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर वापस बनते हैं तो ये हमें फंड अलॉट नहीं करेंगे। इस बात को झूठा ठहराने के लिए इस बार अजित पवार साहब ने शिंदे गुट के जितने भी विधायक है उनको दोनों हाथ से लुटा दिया है फंड। किसी को 125 करोड़ है, किसी को 50 करोड़ है, एवरेज 25 से 30 करोड़ शिंदे गुट के हर विधायक को दिए गए हैं, ताकि अपने अपने एरिया में वो अच्छा काम करे। इनके अभी की जो हालात है महाराष्ट्र में, वो हालात दिखा रहे थे 40 में से शायद 10 या 12 ही वापस चुन के आ जाए। ये जो हालात है वो हालात फिर से जो बद से बदतर होती जा रही है, ये सुधारने के लिए ये फंड अलॉट किया जा रहा है सबको। अभी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के कुछ विधायकों को जिनके अजित पवार के साथ निजी संबंध थे उनको फंड दिया गया है, और जो अजित पवार के सरकार के खिलाफ है उनको फंड अलॉटमेंट से दूर रखा गया है। ठाकरे गुट के बहुत ही कम विधायकों को फंड दिया गया है। तो ये जो फंड की अलॉटमेंट है, ये एक्चुअल अगर हम देखें तो जिस जगह पे जरूरत है उस हिसाब से होनी चाहिए, वो हुई नहीं है। इंसान देख के फंड अलॉट किया गया है, ना कि डेवलपमेंट देख के फंड अलॉट किया गया है। निजामुद्दीन राइन साहब, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बिकॉज सबका आरोप है कि ढंग से फंड अलॉटमेंट हुआ नहीं, राइन साहब। और आप क्या ये जो बोलिए। इससे भी घटिया काम उन्होंने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किया है। बीजेपी के जो कारपोरेटर हैं, चूंकि अब कारपोरेटर है नहीं, कारपोरेशन बर्खास्त है, उन कारपोरेटर को भी आमदार की मदद से 5-5 करोड़ रुपए दिया है। वो पैसा भी उन्होंने सिर्फ उसको दिया है जो बीजेपी के साथ है या बीजेपी में है। तो इससे घटिया बात महाराष्ट्र में कभी नहीं। महाराष्ट्र इतना प्रोग्रेसिव प्रदेश रहा है कि हमारा पार्टी का मतभेद हो सकता था, लेकिन जनता के हित में फैसले लिए जाने वाले सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को, जो भी आमदार खासदार या जो फंड कॉर्पोरेशन का आता था, वो सबको बढ़िया तरीके से मिलता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंदरबाट जिसको बोलते हैं कि लूट मची है, वो अपनी मर्जी से जो उनके साथ विधायक गए हैं उनको बांध के रखने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उन नगर सेवकों को पैसा दिया जा रहा है जिसे जिताने की जवाबदारी ली जा रही है। ये इतना कभी भी इस तरह का महाराष्ट्र में नहीं हुआ। ये निहायत घटिया और गलत तरीका है, क्योंकि महाराष्ट्र पूरी दुनिया में राजनीतिक तौर पर बहुत ही बढ़िया प्रदेश है,
जहां कभी भी हम एक विचार में विरोध कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ राजनीतिक विरोध था, लेकिन कभी भी जनता का नुकसान नहीं किया। जनता का नुकसान तब शुरू हुआ जब बीजेपी ने यहां बदमाशी करना शुरू किया, यहां से फाइनेंशियल हब को उठाकर गुजरात ले गई, महाराष्ट्र के सारे हितों को गुजरात के हवाले किया गया। ये सारी घटनाएं, ये सब इनके राज्य में हुआ और इसके जवाबदार होंगे। जनता इन सब विषयों पे भी इनको सबक सिखाएगी। महाराष्ट्र में भी जल्द चुनाव आने वाले हैं, इसका रिजल्ट भी आपके सामने होगा ना। बट योगेश चिल्ला साहब, क्या ये सच है देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि एमवीए के वक्त में किसी को कोई फंड नहीं मिला? आगे जाके रामदास कदम ने आज असेंबली में, आप सुनिए निजामुद्दीन जी, रामदास कदम ने आज असेंबली में कहा कि 2.5 साल तो उद्धव जी सो रहे थे, वो घर के बाहर निकले नहीं, और फंड का डिस्ट्रीब्यूशन टोटल तभी अजित पवार थे, और जिस प्रकार से एनसीपी को दे दिया गया हर चीज, तो क्या ये सीएम इफेक्टिव नहीं थे जैसे फडणवीस साहब कह रहे हैं कि एमवीए के वक्त पे टोटल डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से हो रहा? जितना बढ़िया कार्यकाल उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र में था, अब तक किसी का भी नहीं रहा। तो उनके पास कोरोना काल के अंदर भी इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने जनता का काम किया, और लोक प्रतिनिधि होने का सही तरीका जो था उन्होंने उसको अपनाया। 3 दलों की सरकार होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने कोई कष्ट नहीं होने दिया। अपने विरोधियों को भी उतना ही पैसा दिया जितना उन्होंने अपने साथियों को दिया। तो ये बातें करना और झूठ बोलना इनकी खानदानी आदत है, और ये हमेशा ये लोग बोलते रहते हैं। और जो लोग एक दूसरे के विरुद्ध गए, आज वो खुद ही लड़ रहे हैं। जिस राम कदम की आप बात कर रहे हैं, उनको पार्टी से कैसे उन्होंने निकाला, वो सारी चीजें आपको अच्छे से पता है। आप बेसिकली महाराष्ट्र से आपके राजनीतिक संबंध 20 वर्षों से रहे हैं नाम्बियार साहब, आपने करीब से देखा है। तो ये बात बिल्कुल झूठी है, और बीजेपी इस तरह के ही आरोप लगाती है, और खुद सारे पैसे कैसे डकारने का है वो उससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो चिले साहब, जो आरोप देवेंद्र फडणवीस और राम कदम ने लगाया कि 2.5 साल तक उद्धव जी बिल्कुल इमोबाइल थे, निकल नहीं रहे थे, और इसीलिए ये सब हुआ। हाउ डू यू सी दैट एलिगेशन चिले साहब? पहली बात तो ये है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार ही थे। अगर तब फंड बांटा नहीं गया, ऐसे आरोप देवेंद्र जी लगा रहे, तो ऐसे नाकामयाब आदमी को आपने वापस फाइनेंस मिनिस्टर बनाया क्यों? जिसको फंड बांटना ही नहीं आता उसको वापस आप अगर बनाते हैं तो आपकी बात में ही कॉन्फ्लिक्ट है। आप खुद एक बात अलग करे, दूसरी बात रही बात अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि उद्धव जी का शासनकाल, कौन सा शासनकाल उद्धव जी का? कोरोना की जो बात उन्होंने की है, कोरोना के वक्त आप खुद जाके देखिए, जो पंखा बाजार में 2000 रुपए में आप खरीद सकते हैं, उसी पंखे का 1 दिन का 100 रुपया भाड़ा देके 90 दिन का एडवांस पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को किया है। लोग यहाँ पे मर रहे थे, और इनके जितने भी एमएलए है, जितने भी महानगर पालिका के इनके मेयर थे किशोरी पेडनेकर, इन पे भ्रष्टाचार के आरोप है। ये क्यों हुए आरोप इन पे? क्योंकि इन्होंने पैसा खाया है। जो चीज अच्छी है उसे हम अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा कहना ही चाहिए। उद्धव जी ने कोरोना काल में जो काम किया, महाराष्ट्र के जनता का पैसा लूटने का काम उन्होंने तब किया था। आज भी कैग का रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट में उनपे जो उंगली उठाई गई है, अगर उसका इंक्वायरी हो जाएंगे, ये सब अंदर जाने वाले हैं। ज्यादा दिन नहीं लगेगा, लेकिन ये सब अंदर जाएंगे, इतना मैं आपको आज कहता हूँ। फाइनल वर्ड राइन साहब, फाइनल वर्ड, वी कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आप कुछ कहना चाहेंगे? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अभी म्युनिसिपल चुनाव तो आने वाले अक्टूबर में शायद। उसमें एसआईटी सरकार ने बिठाई है, उसका रिजल्ट आ जाएगा। जिसने गलत किया होगा उसे पनिश होना चाहिए। मैं इस बात का कभी समर्थन नहीं करता कि किसी ने गलत किया है तो उसे बख्शा जाए। अगर उन्होंने, सरकार ने बैठाई है एसआईटी की जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। इनकी तरह नहीं है, बीजेपी की तरह कि कल तक आरोप थे कि 70,000 करोड़ रुपया इन्होंने खाया और दूसरे दिन उनके साथ आ गए तो गले लगा लिया। कांग्रेस ने अपने साथ अपने एलआई को भी, आपको याद होगा, सेंट्रल से लेके स्टेट तक जहां जहां गलत किसी ने किया था और उन पर आरोप लगा, उनको फौरन बर्खास्त किया। उसके बाद वो जेल गए, केस चला, अगर बचकर कोई साफ सुथरा आया तो उसे लिया। लेकिन बीजेपी तो नकारा है कि कोई भी बेईमान से बेईमान, डाकू से डाकू, कोई भी उनके यहाँ आए, अगर वो बीजेपी में शामिल होता है तो उसके सब गुनाह माफ है और उसे वो छोड़ देती है। राइन साहब, हाउ बीएमसी इलेक्शन में कैसे परफॉर्मेंस होगा? लास्ट वर्ड।
अब मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि 2025 तक भी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि उनका जो बेईमानी का धंधा है वो फल फूल रहा है, पैसा उनको सब आ रहा है। इसलिए ये सरकार रहेगी तो चुनाव नहीं होगा कारपोरेशन का। मैं आपको आज बोल रहा हूं 2025 तक तो इनका कोई प्लान नहीं है कि मुंबई में ये कारपोरेशन का चुनाव कराएं। अगर ये चुनाव कराएंगे तो बुरी तरह से हारेंगे, आप देख लेना। चिले साहब, फाइनल वर्ड बिफोर वी क्लोज। चिले साहब, एमएनएस किस प्रकार से बीएनसी चुनाव देख रहे हैं? रायन साहब तो बोल दिए, द फाइनल वर्ड चिले साहब। सर, मैंने आपको इसके पहले भी बहुत बार कहा है कि इस बार जनता राज ठाकरे जी के साथ है। जनता खुद चाहती है कि राज ठाकरे जी के लोग चुनाव जीते और संसद में, विधानसभा में या फिर महानगर पालिका के सभागृह में जाके बैठे और जनता के लिए काम करे। आप इस बार देखेंगे मनसे ने आज तक जितनी सीटें नहीं जीती है उससे कई ज्यादा सीटें इस इलेक्शन में मनसे जीतेगी। थैंक यू निजामुद्दीन रोइन साहब, थैंक यू योगेश चिले साहब। फाइन डिस्कशन, बहुत जबरदस्त आप लोग से एकदम फंटास्टिक ये हो गया डिबेट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन नेशन नाउ। The Constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. That's all from Nation Now. Pradeep Nambiar will come again tomorrow, meet you tomorrow again with more news from the center, nation, Maharashtra and Mumbai. Bye for now.